Hello dear student, welcome to the SAGE group. In today's class, in the series of design of RCC structure, we'll discuss about the basics of RCC slab. Okay, so let's start the class. Slab. Basically, slabs are also a structural element. If we see about the load bearing system in our structure, so there are various elements. All of them, the slab is also a element. Okay. तो अगर हम बात करें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं हमारे फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में जो लोड जिनके थ्रू लोड ट्रांसफ़र होता है सो देयर आर स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग. Firstly, live load comes on slab, then through slab it go on beam, and from beam it go on column, and from column it transfer on footing, and after the footing it transfer on the ground. Okay, so if we talk about our framed structure, in our framed structure or load bearing structure also, that is the elevation view and that is top view. Okay, so here that portion is our slab, and these are our beams. Okay, and the column are at these junctions. It may be anywhere in beam alignment, and that is our footing. So first the live load comes on slab, and through slab it go on beam. The pattern of the transfer of load is like that. It depend on situation. The load of that particular area will go on that beam, and the load of that particular area will occur on that type of beam. So the area wise load transfer on the beam, and from the beam the load is distributed in the form of UDL and go through column, and from column it transfer to the footing, and from footing it transfer to the ground. That is the basic phenomena of load transfer in a building. So in all of these elements are important for a building in load bearing system. Okay, load carrying system. So here we will talk about the slab. Here we'll talk about the slab. So if it is a load bearing system, we need to design it very carefully and in a well manner. Okay, so if we talk about the slab, so these are structural element, and they are planar element. Okay, 2D element, and the thickness of the slab is less as compared to its length and width. Okay, and basically they are defined on the basis of their span, longer and shorter span. The one span is longer span and second one is shorter span. So here suppose this is a longer span Ly, and this is a shorter span Lx. So if we talk about the slab and their classification, so basically slabs are classified on the basis of their nature and the behavior of bending. So first we will classify the slab on the basis of their nature. So on the basis of nature, the slabs are basically two type. First one is solid slab, and second one is flat slab. Flat slab. Okay, solid slab is a slab which is constructed or designed with the beam. Okay, it rests on beam and that don't not directly connected with the column. ये ऐसा स्लैब है जो कि बीम पे रेस्ट करता है, बीम से कनेक्टेड रहता है, स्लैब से लोड बीम में ट्रांसफर होता है, देन थ्रू बीम ये कॉलम में जाता है एंड देन फुटिंग में जाता है. तो इस तरह का जो भी स्लैब होता है दैट कम्स अंडर सॉलिड स्लैब. ओके, एंड if we talk about flat slab, they are beamless slab. There is no any beam. The slab is directly connected with the column. Slab is directly rest on column. Okay, so without beam, the these type of slabs are called flat slab. तो ये सिचुएशन के हिसाब से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो हम कहीं पे भी इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अगर हम बात करें फ्लैट स्लैब की, तो फ्लैट स्लैब बेसिकली
अगर हम कोई मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर देखें, मॉल्स हो गया, मल्टीप्लेक्स हो गया, वहाँ पे जो ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर या अंडरग्राउंड फ्लोर होता है, पार्किंग का एरिया होता है, वो बेसिकली फ्लैट स्लैब के वहाँ पे जो स्लैब होते हैं वो फ्लैट स्लैब होते हैं, वहाँ पे कोई बीम नहीं होती है। उसका मेन रीज़न ये है, एक बेनिफिट हमारे पास ये होता है फ्लैट स्लैब में कि बीम नहीं होता है, तो जो सीलिंग एरिया होता है हमारे पास ज़्यादा होता है, और सीलिंग एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम अगर कोई डक्ट या वायरिंग या कोई पाइप इंस्टॉल करनी है तो इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल ऑल दीज एलिमेंट इन सीलिंग एट सीलिंग। ओके, सो बेसिकली अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें, वहाँ पे जो मैक्सिमम डक्ट का इंस्टॉलेशन होता है वो ग्राउंड में ही होता, अंडरग्राउंड ही होता है, तो वहाँ पे आपको बीम नहीं दिखेंगी, वहाँ पे आपको फ्लैट स्लैब दिखेंगे। बट जब हम फ्लैट स्लैब बनाते हैं तो वहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम ये आती है कि हम स्लैब को एक सिलेंडर मेंबर के साथ कनेक्ट करते हैं, स्लैब को हम डायरेक्टली कॉलम से कनेक्ट करते हैं, हमारा स्लैब डायरेक्टली कॉलम से कनेक्टेड रहता है। अब कॉलम एक सिलेंडर मेंबर है एंड स्लैब एक लार्जर एरिया है स्लैब का, तो यहाँ पे चांस होता है पंचिंग का, कि ये कॉलम पंच करके बाहर निकल जाए, ठीक है ना, तो एक पंचिंग का खतरा रहता है, यहाँ पे एक पंचिंग की सिचुएशन बन सकती है, पंचिंग सीयर जनरेट हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ड्रॉप पैनल्स और कैपिटल्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि जंक्शन पे लार्जर एरिया हमें मिले और पंचिंग की जो चांस बन सकती है उसको हम अवॉइड कर सकें। तो अगर हम फ्लैट स्लैब की बात करें तो फ्लैट स्लैब कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे जो जंक्शन वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे ये ड्रॉप पैनल्स या फिर ड्रॉप पैनल्स और कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जरूरी नहीं है कि हम हर जगह दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करें, ड्रॉप पैनल भी दें और कैपिटल भी दें। यहाँ पे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि हमारा काम सिर्फ ड्रॉप पैनल से चल जाए या फिर हमें ड्रॉप पैनल के साथ साथ कैपिटल भी प्रोवाइड करना पड़े। तो ये कुछ अरेंजमेंट होता है इस तरीके का फ्लैट स्लैब के केस में। यहाँ पे आपको कोई भी बीम नहीं दिखेगी इन द केस ऑफ फ्लैट स्लैब। ओके, बट हियर वी विल डिज़ाइन ओनली सॉलिड स्लैब। ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ सॉलिड स्लैब डिज़ाइन करना है, तो हम उसी की बात करेंगे डिटेल में। बट बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि फ्लैट स्लैब और सॉलिड स्लैब में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देन इफ वी टॉक अबाउट सॉलिड स्लैब, तो बेसिकली ये बीम और स्लैब, बीम के साथ कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है सॉलिड स्लैब। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्लैब होता है वो बीम पे रेस्ट करता है, और उसके बाद जो स्लैब का लोड है बीम के थ्रू कॉलम में ट्रांसफ़र होता है। तो सॉलिड स्लैब बेसिकली हम मैक्सिमम टाइम प्रोवाइड करते हैं अपने नॉर्मल जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे। अब सॉलिड स्लैब को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। बेसिकली सॉलिड स्लैब दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ वन वे स्लैब एंड सेकंड वन इज़ टू वे स्लैब। और ये जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड स्लैब का, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग का क्या नेचर है, बेंडिंग कैसे हो रही है, बेंडिंग किस डायरेक्शन में हो रही है, उसके अकॉर्डिंग सॉलिड स्लैब को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ओके, अब ये वन वे स्लैब या टू वे स्लैब स्लैब कब होगा, ये भी दो क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। दो तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस हमारा ये बन सकता है, केस वन, इफ slab is supported on only two opposite side। अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्लैब है जिसमें वो केवल दो अपोजिट साइड से सपोर्टेड है, सपोज दिस इज अवर स्लैब एंड दिस इज सपोर्टेड ओनली हियर एंड हियर, तो इस केस में हर हाल में जो स्लैब है वो वन वे स्लैब होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेंडिंग की डायरेक्शन होगी केवल एक होगी, वो शॉर्टर डायरेक्शन होगी। ओके, तो अगर ऐसा कोई केस है, अब यहाँ पे लॉन्गर स्पान कितना आ रहा है, शॉर्टर स्पान कितना आ रहा है, दैट डजेंट मैटर। ये लॉन्गर स्पान शॉर्टर स्पान का रेशियो कुछ भी हो, यहाँ पे हर कंडीशन में आपका जो स्लैब है वो वन वे स्लैब होगा, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग का जो डायरेक्शन है वो केवल एक डायरेक्शन रहेगा, और यहाँ पे हमें मेन रेनफोर्समेंट केवल उसी डायरेक्शन के लॉन्ग देनी होगी। तो ऐसा स्लैब जो केवल दो साइड से सपोर्टेड है, दो अपोजिट साइड से, चारों साइड से सपोर्टेड नहीं है, तो वो स्लैब आपका केवल वन वे स्लैब की कैटेगरी में आता है। बट इस केस में आपका जो स्लैब है सिर्फ वो वन वे होगा। केस टू क्या हो सकता है, एंड हियर द केस सेकंड मे बी, if
slab is supported on all फोर साइड। अब अगर हमारा स्लैब चारों साइड से सपोर्टेड है, इस केस में फिर हमें देखना होता है कि वो वन वे भी हो सकता है और टू वे भी हो सकता है। सपोज ये हमारा स्लैब है और ये चारों साइड से सपोर्टेड है, बीम से या वॉल से, कुछ भी सपोर्टिंग एलिमेंट हो सकता है। तो अगर ऐसा स्लैब है हमारे पास, फिर हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि वो वन वे है टू वे है। और ये चेक करने के लिए फिर हमें यहाँ पे देखना होता है लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे फिर हमें एक वैल्यू चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड आस्पेक्ट रेशियो। आस्पेक्ट रेशियो, and that is the ratio of longer span to shorter span. Okay, suppose here longer span is ly and shorter span is lx. So that is the aspect ratio. So if all the side of our slab is supported, then we need to find out first the aspect ratio, and on the basis of aspect ratio only we categorize the type of slab. So if aspect ratio is greater than or equal to 2, the slab will be one way slab. And if aspect ratio is less than 2, the slab will be two-way slab. So on the basis of aspect ratio, the type of slab is categorized or classified. Okay, और दोनों को क्लासीफाई करना जरूरी होता है हमें डिज़ाइन करने से पहले, क्योंकि दोनों की डिज़ाइन अलग होती है। जो वन वे स्लैब होता है उसमें जो बेंडिंग होता है वो केवल एक डायरेक्शन में होता है, तो मेन रेनफोर्समेंट हमें सिर्फ उसी डायरेक्शन में देनी होती है, उसी डायरेक्शन के लॉन्ग देनी होती है। बट टू वे स्लैब में बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में होती है, प्रीडोमिनेंट बेंडिंग होती है, तो हमें दोनों डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करनी होती है, दोनों डायरेक्शन के लिए रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करनी होती है। दैट्स वाई बिफोर starting design we need to check the type of slab whether it is one way or two way, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम उस स्लैब को डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, ये जो हमारा सिस्टम है स्लैब का, अगर इस तरह का स्लैब हमारा सॉलिड स्लैब में आता है, अब ये वन वे है टू वे है, ये आस्पेक्ट रेशियो पे हम डिपेंड करते हैं। यहाँ पे जो स्लैब है वो पहले बीम पे रेस्ट करता है, और बीम से फिर जो लोड है वो कॉलम से फुटिंग में ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो ये जो सिस्टम होता है ये सॉलिड स्लैब में होता है। ओके, अब यहाँ पे हमारा वन वे स्लैब भी हो सकता है और टू वे स्लैब भी हो सकता है, चारों साइड कनेक्टेड हैं, तो फिर हम आस्पेक्ट रेशियो की हेल्प से चेक करेंगे ये चीज़ें। चलिए, देन इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंस between one way slab and two way slab, difference between one way slab and two way slab, कई बार ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को हम 5 कैटेगरी में डिफरेंशिएट करते हैं। इफ वी टॉक हियर वन वे एंड टू वे, फर्स्ट कैटेगरी इज आस्पेक्ट रेशियो। aspect ratio, तो in the case of one way aspect ratio is greater than or equal to 2, okay, and in the case of two way aspect ratio is less than 2. The second parameter is bending direction. Bending direction, तो in one way bending occur in one direction, and in two way slab bending occur in both direction. The third category is reinforcement, प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। ओके, तो वन वे स्लैब में जो रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट है, वो केवल उसी बेंडिंग के अलॉन्ग वाली डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, एंड द सेकेंड डायरेक्शन में
डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो जो डिज़ाइन करनी होती है वो हमें केवल मेन रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करनी होती है, और वो केवल एक डायरेक्शन में हमें डिज़ाइन करना होता है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ओके, सो जो मेन रेनफोर्समेंट है वो वन डायरेक्शन में ही प्रोवाइड किया जाता है, एंड दैट इज़ शॉर्टर स्पान। शॉर्टर स्पान के लॉन्ग ही हम डिज़ाइन करते हैं, और मेन रेनफोर्समेंट को शॉर्टर स्पान के लॉन्ग ही प्लेस करते हैं। और जो मेन रेनफोर्समेंट टू वे स्लैब में है वो दोनों डायरेक्शन में डिज़ाइन करना होता है और दोनों डायरेक्शन में प्लेस किया जाता है। तो मेन रेनफोर्समेंट बहुत डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है, बट जो कैलकुलेशन का लिए हम स्पान यूज़ करते हैं वो शॉर्टर स्पान ही यूज़ करते हैं दोनों केस में। जब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे दोनों ही केसेस में शॉर्टर स्पान की हेल्प से ही कैलकुलेट करते हैं। द फोर्थ क्राइटेरिया टू डिफरेंशिएट वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब इज थिकनेस ऑफ स्लैब। Thickness. The thickness of one way slab is more and thickness of two way slab is less as compared to one way slab. And the fifth one is economy. Which one is more economical? So one way slab is less economical and two way slab is more economical. Okay. Why? The first reason is thickness. If the thickness is more, that means the more material is used in one way slab and less material is used in two way slab. And second, reinforcement. आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हम reinforcement सिर्फ एक डायरेक्शन में दे रहे हैं, यहाँ पे दोनों में नहीं। reinforcement हम दोनों में दोनों डायरेक्शन में दे रहे हैं, बट वन वे स्लैब में reinforcement हमें केवल एक डायरेक्शन में डिज़ाइन करनी पड़ती है। दूसरी डायरेक्शन में हम नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। सपोज दैट इज द मेन रेनफोर्समेंट which are being designed, then the secondary or distribution reinforcement also provided in one way slab, and that is nominal value। ओके, तो यहाँ पे डिज़ाइन नहीं करते हैं बट प्रोवाइड हम दोनों डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट करते हैं। और टू वे स्लैब में हमें दोनों डायरेक्शन में डिज़ाइन भी करनी होती है, दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड भी करनी होती है। तो रेनफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में हम दोनों टाइप की स्लैब में प्रोवाइड करते हैं, बट डिफरेंस रहता है उनकी डिज़ाइन का। तो जो इकोनॉमी है वो वन वे स्लैब की कम होती है, ज़्यादा कॉस्ट आती है यहाँ पे, और टू वे स्लैब की ज़्यादा होती है इकोनॉमी, कम कॉस्ट निकल के आती है। So these are the basics of slab. Okay. That's all for today. Thanks.